کرام، علماء کرام، حفاظ کرام، سامنے بیٹھے ہوئے تمام مسلمانان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سب ایک مبارک موقع پر عید کی برکتیں الگ ہوتی ہے، درگاہوں کے سجادہ نشین اپنے اپنے درگاہوں سے الحمدللہ فیوز و برکات لے کر یہاں حاضر ہیں۔ مسجد کے خطیب و امام حافظ انور حسین صاحب سے گزارش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فتمتعوا قلیلا انکم۔ ہمارے ممبر پہ جو سادات کرام حاضر ہے الحمدللہ ان کے نام اور ان کے ناموں کے ساتھ برکتیں حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا نام ہے الحمدللہ ہمارے اسٹیج پر ڈاکٹر سید عارف پاشا قادری، خلف اکبر سجادہ نشین، بارگاہ سرکار لاؤبالی قدس سرہ، کرنول شریف سے آپ تشریف فرما ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے اسٹیج پر خواجہ سید شاہ بابا رکن الدین احمد حسینی المعروف تاج بابا صاحب قبلہ پنگوندہ شریف، سرکار بابا فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار سے حاضر ہیں۔ اور ہمارے درمیان سید معصوم پیر حسینی صاحب قبلہ خالق لنگا درگاہ مسجد کرنول سے حاضر ہیں۔ سید شاہ الیاس قادری صاحب قبلہ یاو بادشاہ مسجد سجادہ نشین کرنول سے حاضر ہیں۔ اور محمد عظیم صاحب سپرنٹ وقف بورڈ آفس کرنول سے حاضر ہیں۔ اور اسی طریقے سے سید معین الدین قادر ولی صاحب باندی عباسی جامع مسجد متولی بیجاپور حاضر ہیں۔ اور صوفی شیخ محبوب بادشاہ گارلدینہ محبوب سبحانی آستانے سے حاضر ہیں۔ الحاج محبوب بادشاہ قادری صاحب اننتپور سے حاضر ہیں۔ اور حافظ و قاری محمد نور الحق بیابانی مسجد رحمانیہ سائی نگر سے حاضر ہیں۔ خواجہ سید شاہ عبید اللہ حسینی صاحب قبلہ سجادہ نشین آستانہ ببری جھنڈا قدری سے حاضر ہیں۔ اور اسی طریقے سے سید طاہر پیران قادری صاحب قبلہ سجادہ نشین آستانہ غوثیہ جمل مرگو سے حاضر ہیں۔ سید انور پاشا سہروردی صدر مدرسہ سہروردیہ گپی سے حاضر ہیں۔ سید خواجہ معین الدین قادری المعروف نور بابا صاحب سجادہ نشین یلارتی درگاہ اور نور دریا رائچور سے حاضر ہیں۔ سید غوث محی الدین شاہ قادری سجادہ نشین دادا پہاڑ سے حاضر ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے درمیان میر عباس علی بیگ صاحب استاد بابا درگاہ سجادہ نشین رحمت آباد نیلور سے حاضر ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے درمیان سید شاہ جاوید بادشاہ قادری جانشین درگاہ ساقیہ کرنول سے حاضر ہیں۔ اور بھی علماء حفاظ ہمارے درمیان حاضر ہیں۔ اب آئیے ہم انشاءاللہ ابھی ہمارے شہر اننتپور کے ایم ایل اے صاحب آ رہے ہیں، ان کے گل پوشی شال پوشی کے بعد انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھایا جائے۔ آدھا گھنٹے کے لیے آؤ بولے تو میں یہاں پر حاضر ہو گیا۔ اور اننتپور والے اور یہاں پر جتنے بھی سجادگان اور صاحبین اور مشائخ جتنے بھی ہیں اجازت دیں تو آئی نوازش ہوگی۔ ایسے شکیل شفیق حضرت اور ہمارے بڑے حضرت جو بھی ہیں یا ایسے کاموں کے لیے کبھی بھی مجھے آپ اطلاع کریں تو میں ضرور حاضر رہوں گا۔ ان کو معلوم بھی ہے اور میری ان کی محبت کیسی ہے، اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اور ان کی حیات عمر دراز اللہ تعالی ہمارے سب کے دعاؤں کے طرف سے ہر ایک کی دعا کے ساتھ زیادتی عطا فرمائے، اور ہمارے شکیل بھائی کو اور ترقی اور ان کو بلند ترقی پر اور دین و دنیا کی اور جو محنتیں اور مشقتیں کرنے ہیں
اور عوام کے لیے خدمت کے لیے آگے بڑھنے کے لیے حضرت مولا علی مشکل کشا کی طاقت عطا فرمائے. اور جو یہاں پر ہم سب جمع ہوئے ہیں ہمارے فقراؤں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کل میں فون سے بولنے کے بعد وہ سب آ گئے, کیونکہ میں زیادہ بات نہیں کر سکتا, وقت ایک دم چھوٹا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے شکیل شفیع بھائی کا اور ہمارے ایم ایل اے صاحب کا اور ہمارے جو مہمان یوپی صاحب آئے تھے ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور اجازت لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور میں ہمارے بڑے حضرت کو اور شکیل بھائی کو میرے طرف سے گل پوشی اور سال پوشی کرنے کے بعد یہاں کا پروگرام شروع ہوگا. فقرا تمام عشق اللہ فخر اللہ بوا آپ تمام کھانے گینے کھا کے پورا ختم ہوئے بعد شکیل بھائی جب بولیں گے جب نکلو بوا. السلام علیکم عشق اللہ فخر اللہ. ارے تکبیر اللہ اکبر ارے رسالت یا رسول اللہ. سائڈ ہو جاؤ. ایسوسیشن کی جانب سے ایسوسیشن کی معتمد عالیہ عالی جناب KSS عبید اللہ حسینی صاحب گلا, ہمارے سابقہ وقف ڈائریکٹر صاحب الحاج KM ذکی اللہ قادری مدد اللہ العالی کی شال پوشی کریں گے. اور گل پوشی بھی فرما رہے ہیں. اور اسی طرح وقف متولی ایسوسیشن کی جانب سے وقف متولی ایسوسیشن کے صدر عالی جناب الحاج KM شکیل صفی قادری صاحب کی شاہپوشی, حضرت العلامہ مولانا پیر طریقت حضرت سید شاہ طاہر پیرا قادری مدد اللہ العالی سجادہ نشین آستان عالیہ غوثیہ بڑا مکان جمل مڑگو فرما رہے ہیں. اور اسی طرح ایسوسیشن کے جنرل سیکریٹری کی جانب سے ایک یادداشت بھی پیش کی جا رہی ہے. ایسوسیشن کے صدر صاحب الحاج KM شکیل صفی قادری صاحب کو دو شعر سماعت فرما لیں. ہے کون بھلا احمد مختار کے جیسا, ہے کون بھلا احمد مختار کے جیسا, سرکار کے جیسا کوئی بھی نہیں. سبحان اللہ. اے چاند تیرا جمال اپنی جگہ ہے, بلال اپنی جگہ ہے. اے چاند تیرا پہ زمانہ
प्रयास पे आने के लिए बोले। वैसे ताजुद्दीन महफिल प्रयास पे दादू भाई खिंचा का थोड़ा साइड से वक्त कम है, इसलिए अभी वही इसमें अभी 3 प्रोग्राम होंगे। जो भी फूल यहाँ पे मंगा गया है कर्नाटका से, उस फूल में हमारे साथ वो जो भी बुजुर्ग हमारे डयास पे हैं, जो भी हजरात आए हैं, साहिब आए हैं, सज्जाद नशीन आए हैं, उनके दुआ होने के बाद उस फूल पे हम लोग हमारे रिश्तेदारों के मज़ारों पे और मदरसे के बच्चे के तरफ से पूरे जो भी 4000 मरहूम हो चुके हैं, 4000 हजरात मरहूम हो चुके हैं, उनको सब 1000 रुपये उनके घरों पे फूल चढ़ाया जाता है। उसके बाद MLA साहब आने वाले हैं। अभी हमारे कालवा श्रीनिवासलू साहब पहले 10 लाख रुपए हम लोगों को दिए थे जब वो MP थे, देखे शादी खाना बंधाए थे। जब से आज तक उनको कभी फूलगोशी करने का मौका ही नहीं मिला, तो उन्होंने MP रहने के टाइम में 10 लाख रुपीस दे के हमारे को एक शादी खाना दिए थे। और MP होने के बाद कई मस्जिदों को, कई हमारे इजारों को जो है उन्होंने अपने फंड से दे के हम लोगों को बहुत साथ दिए। और उनका हम लोग सब लोग थालियों के साथ उनको जो है शुक्रगुजार करना है, ताकि वो कई दिनों से हमारी खिदमत करें। अभी MLA साहब आए हैं, हमारे अनंतपुर शहर है, अनंतपुर के दग्गुपाटी प्रसाद साहब आए हैं, उनको डयास पे आने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा तो सेल लेकर साइड आना बात है ना भाई 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 सेल भाई मेरे को तो नहीं कराने भाई सेल लेकर भाई मोबाइल नहीं कराने नीचे आ जाना सामने अलग दिन को बंदन साइड जाना भाई साइड ब्रो ना नहीं कराना हम जितना भी कहें, हमारे दग्गुपाटी वेंकटेश्वर राव साहब जो खिदमत करे हैं, 1 साल होने पे भी नहीं आए। हमारे इस मस्जिद का जो है संग बुनियाद उन्हीं के हाथों से डाला गया था। हमारे सारे स्टेज पे जितने भी आए हैं उनके साथ ही साथ। और उसके बाद इन्होंने तकरीबन 1 करोड़ रुपए हमारी मस्जिद कब्रिस्तान के कंपाउंड वाल के लिए और उसमें इलेक्ट्रिकल लाइटिंग के लिए दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सब लोग थालियों के साथ उनको फिर से हमें शुक्रगुजार करना है। अभी जो हज़रत आपसे दुआ से आपके इससे अगर हमारा पहला प्रोग्राम या तो फूलों के पास हम लोग दम करके जो उनको बच्चों को भेज के कब्रिस्तान डाले या वो करें। हेलो टेलीविजन आना वहाँ पे स्टोन इनाग्रेशन का है, आप हजरत यहीं पे बैठे हैं। కొంచెం సైడ్ రానా విశిష్ట అతిథిగా దగ్గుపాటి ప్రసాద్ గారు, ముఖ్య అతిథిగా కాలువ శ్రీనివాసులు గారు, ఇక్కడ వచ్చిన పెద్దలందరికీ పేరు ఇక్కడ ఎవరైతే మసీదుకు చందాలు ఇచ్చారో వాళ్ళ పేర్లు కూడా మేము ఇక్కడ ఎవరు ఎంత ఇచ్చారని ట్రాన్స్పరెన్సీ కోసము వాళ్ళు లైట్లు ఇచ్చిన ఫ్యాన్లు ఇచ్చిన కూడా వాళ్ళ పేర్లు, తర్వాత మున్సిపాలిటీ నుంచి మాకు కార్పొరేటర్లు అందరూ మా కమ్యూనిటీ కార్పొరేటర్లు అందరికీ పిలవడం జరిగింది. అన్ని పార్టీల వారిని అందరినీ పెద్ద మనుషులు, బుతవల్లీలు, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా
అనేక మంది ఇక్కడ సజ్జాదే నరసింహ వచ్చారు. అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. తదుపరి కార్యక్రమం కాలువ శ్రీనివాసులు గారు మాట్లాడిన తర్వాత बात कहते हैं अल्लाह ताला इसी तरह और काम उनसे मुतवल्ली एसोसिएशन के कई जिम्मेदारियां हमारे साइड करना रहने ना मैं बैक एंड पे रहता हूँ, पूरा फ्रंट एंड पे तो साहब कर रहे हैं। तो आप सब लोग थालियों से जो भी मुतवल्लियों के मसले हैं, जज्जाज नशीन के मसले हैं, इमामों के मसले हैं, सारे उन्हीं से हम लोग टेकअप करके आगे ले जा रहे हैं। आप सब थालियों के साथ उनको शुक्रगुजार करना जरूरी है। हमारे सज्जादा नशीं और जो भी हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, अल्लाह ताला का एहसान है, करम है कि हम सबको यहाँ पर एक नेक काम के लिए इकट्ठा किए हैं। बहुत दिनों से शकील सफ़ी ये मस्जिद बनाने के वास्ते जो है जद्दोजहद करते करते अल्लाह ताला आज जो है इसका इनाग्रेशन का वक्त लाया है। हम सब अल्लाह ताला को शुक्रगुजार हैं और हमारे हर मुसलमान जो भी इसमें हिस्सा लिए हैं उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नौजवान बच्चे हैं ना, दिन रात यहाँ पे काम करे हैं मस्जिद की तामीर के लिए। अल्लाह ताला उनके कारोबार में तरक्की दे, लंबी उम्र दे और उन्हें जो है ऐसे नेक कामों में काम करने के लिए और अच्छा सलूक से टाइम कम रहने की वजह से कारोबार में और तरक्की दे। अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत के लिए कितनी सी जिंदगी नाकाफी है मोहब्बत के लिए, ना जाने लोग कहाँ से लाते हैं वक्त नफरत के लिए। और एक शेर सुनाता हूँ मैं। मेरे खुदा किसी से छीन कर मुझको खुशी न दे, मेरे खुदा किसी से छीन कर मुझको खुशी न दे, जो दूसरों पे बार हो वो जिंदगी न दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना व मौलाना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम उलमाए अहले इस्लाम, मशाइख़ किराम, सादत रुज़ान, कायदीन, हमायदीन और शुरकाए मजलिस, आप हम एक मस्जिद की इफ्तिताह की तकरीब के सिलसिले में यहाँ जमा है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाने वालों को जन्नत की खुशखबरी की नबीद सुनाई है। इरशाद फरमाया कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में मस्जिद को आबाद करना कि उन लोगों की सिफत बयान की जो अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं आखिरत पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं, आबाद रखते हैं जो ईमान ला चुके हैं अल्लाह पर और यौम आखिरत पर।
मस्जिद की तामीर करना, मस्जिद को आबाद रखना, ये ईमान की मोमिन की सिफत है, ईमान की पहचान है। और मस्जिद को तामीर करने से मुराद क्या है? मस्जिद बनाना भी है, और मस्जिद को साफ रखना, साफ साफ रखना, मस्जिद में रोशनी का इंतजाम करना, ये सब मस्जिद को आबाद करने में शामिल है। और सबसे बढ़कर मस्जिद को आबाद करने का प्रैक्टिकल तरीका यह है कि मस्जिदों में बाद जमात नमाज अदा की जाए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद जमात मस्जिद में अदा की जाने वाली नमाज को तन्हा अदा की जाने वाली नमाज के मुकाबले में 27 दर्जे अफजल करार दिया है। वो कमा वरदा फिर रिवायत, यानी 27 नमाज़ों के बराबर में एक नमाज होती है जो मस्जिद में बाद जमात अदा की जाती है। और हमारे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायमी तरीक़े मुबारक का यही रहा कि आप फ़र्ज़ नमाज बाकायदा मस्जिद में आकर बाद जमात अदा फरमाया करते, यहाँ तक कि जब मरद विसाल मुबारक में चलना फिरना दुश्वार मालूम होने लगा तो 2 सहाबा के कंधों पे हाथ रखकर 2 सहाबा के सहारे से आप मस्जिद को तशरीफ़ लाते और मस्जिद में बाजमात नमाज अदा फरमाया करते। सिर्फ आपके विसाल मुबारक से चंद दिन पहले से जब मरद विसाल मुबारक इतना ज़्यादा हुआ कि सहारे के साथ चलने में मुश्किल हो गया, ऐसी मजबूरी की हालत में अपनी घर में नमाज अदा फरमाई। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वरना तो उन्होंने तरीक़ा मस्जिद ही में नमाज अदा करने का रहा। इस ज़मन में मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा क्योंकि वक्त में गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। अलबत्ता एक आखिरी बात की बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की ज़िंदगी को आमाल सालिहा का ज़ख़ीरा करने के लिए एक बेहतरीन मौके के तौर पे अता फरमाया, जैसा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। यानी दुनिया में आदमी जो बोता है आखिरत में काटता है, खेती करने का ये मुहम है। और इंसान जो आमाल अंजाम देता है वो दूसरी आदमी से पता करता है, उसके मौत के साथ अमल का सिलसिला मौकूफ़ हो जाता है, मुनक़ते हो जाता है, टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 काम करने वालों को ये खुशखबरी सुनाई है कि उनके मरने के बाद भी उनके नेक अमल का सवाब का सिलसिला जारी भी रहता है, उनके नाम अमल में उनके मरने के बाद भी उनके नेकियों में इजाफा होता रहता है। जैसा कि हदीस पाक में है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुल्लु अमल इब्न आदम, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़ा मातल इंसानु यनक़तिउ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया व इल्मिन युंतफ़उ बिही अविल वलदिन सालिह यदऊ लहु। इरशाद फरमाते हैं कि जब आदमी मरता है तो उसके अमल का सिलसिला टूट जाता है। और 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके ज़रिए मरने वाले को मरने के बाद भी सवाब मिलता रहता है। पहले नंबर पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ा जारिया का जिक्र फरमाया। दूसरे नंबर पर ऐसे इल्म का जिक्र फरमाया कि जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचता रहे। और तीसरे नंबर पर आपने इरशाद फरमाया उन्हें औलाद जो माँ बाप के लिए दुआएं खैर करती रहे। तो सदक़ा जारिया से मुराद ऐसे काम अंजाम देना कि जिनका सवाब लोगों को पहुंचता रहे, निफाए आम्मा के तौर पर, पब्लिक वेलफेयर के तौर पर, आम लोगों के फ़ायदे के लिए कोई ऐसा काम करके जाना जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, ये सदक़ा जारिया में शामिल है। उसकी अदना शक्ल एक दरख्त बो देना है। अगर एक दरख्त भी लगाता है तो जब तक वो दरख्त रहता है, कोई इंसान या कोई परिंदा उसकी छाँव में आकर बैठता है, उसका फल खाता है, उस पर लगने वाली चीज़ों से फ़ायदा उठाता है तो दरख्त लगाने वाले को भी उसका सवाब मिलता है। और मस्जिद की तामीर को सदक़ा जारिया में ये इंतहाई अहम तरीन अमल दर्जा खैर का अमल है, क्योंकि मस्जिद एक ऐसा मुकाम होता है कि जहाँ बंदे को मेराज नसीब होती है। मेराजुल मोमिनीन जो नमाज है वो नमाज मस्जिद में अदा की जाती है। मैं मुबारकबाद देता हूँ हज़रत सैयद शाह अब्दुल रहीम क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो मस्जिद यहाँ पर बनाई गई, और मस्जिद के बनाने वालों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ पर जो हज़रत मौजूद है उनके साहिबजादी और उनके दीगर जितने मुआविनीन जिन्होंने इस कार्य खैर को अंजाम दिया है, उन सबको मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस बुज़ुर्ग के नाम से मस्जिद को कायम किया गया है उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और इस मस्जिद को अल्लाह रब्बुल आलमीन नमाज़ पढ़ने वालों से, जिक्र करने वालों से खूब शाद और आबाद रखे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मस्जिद को तामीर करने वालों को के लिए इस मस्जिद को सवाब जारिया बताए। सल्लल्लाहु तआला व बारक व सल्लम अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही नबिय्यिना व मौलाना व हबीबिना व शफ़ीइना व सय्यिदिना मुहम्मद
وعلى آله وصحابته أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمین. ہمارے عبدل رحیم قادری صاحب کے بارے میں صرف دو باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑی ہستی تھی. مجھے پرسنل ان سے بہت نزدیک سے تعلقات تھے. میں جب قدری کو جاتا تو معلوم ہوتا کہ تہجد کی نماز اٹھ کے جائے نماز پہ ایسا ہی سو جاتے تھے. بہت گڈے آدمی تھے. صبح کی نماز کی اذان آئی تو ان کی بیوی اٹھاتے تھے, اذان دیتے ہی چلو صبح کی نماز. ان کی بہت بڑی کرامت ہے. کبھی ٹائم ملے تو کبھی میرے ساتھ ملے تو محمد دیوان گٹے میں ایک بہت بڑا حادثہ چلا ہے. میں اب بولنا نہیں چاہتا. اب کبھی بھی آپ میرے سے ملے تو فرصت سے ان کی کیا قصہ ہوا. وہاں کا مزاور میرا کلاس میٹ تھا. انہیں ایسی بات بولے ہے کہ میں اب سنا نہیں سکتا. کبھی جب آؤ میرے پاس انشاءاللہ بتاؤں گا. شکریہ. ہمارے اے پی اسٹیٹ متولیز ایسوسیشن جنرل سیکریٹری قادری سے ہیں ہمارے عبید اللہ صاحب سجاد نشین. دو لفظ بات کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاۃ والسلام علی رسول کریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اللہ تعالیٰ, رسول اللہ, تمام بزرگان دین کا شکر ادا کرتا ہوں, اور خاص کر ہمارے شکیل شفیع بھائی اور ان کے والد صاحب سیف اللہ صاحب کا بہت شکر ادا کرتا ہوں, جو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ہدایت دیا کہ ایک مسجد کو تعمیر کرنے کے لیے. اس مسجد کی تعمیر میں بہت سارے ان کے جو بچے ہیں, جو ٹیم ہے, بہت دن رات محنت کر اتنی جلدی تعمیر کرے ہیں, تعریف کے قابل ہے. خاص کر بابا جی اور نور بابا اور بہت سارے بچے ہیں جو نام نہیں معلوم, ان کا سب کا شکر ادا کرتا ہوں, جو اس مسجد کی تعمیر میں دین جان لگا کر اس مسجد کو اتنی خوشنما اور بہترین مسجد بنائے ہیں. اور ہم سب کا فرض ہے اس مسجد کو آباد کرنا. صاحب اللہ بتائے تھے مسجد کو آباد کرنا ہمارا فرض ہے, اور اس میں ایک ہو کر نماز پڑھنا بہت ضروری ہے. یہ فرقوں کے ہمیں آنے والے طاقتیں, جو سیاسی طاقتیں ہم کو فرقوں میں بانٹ دیے گئے اور ہم پہ حکومت کر رہے ہیں, مگر ہم ایک ہو کر, امتی ہو کر اس مسجد کو آباد کرنا ہے. اور امتی ہو کر ہم اس دنیا میں ہم جینا ہے, اس ملک میں ہم جینا ہے. اس وجہ سے اگر وہ ایک ہو کر جیے ہیں تو ہم کسی بھی طاقت کا, ہم کسی بھی سیاست کی طاقت جو ہم پر ظلم کرنے کا سوچ رہے اس کے اوپر ہم قابو پا سکتے ہیں. اور اس میں ہماری بہتری بھی ہے, آنے والی نسل بھی ہماری بہتری ہے. اور افسوس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کام ہے ہم خود کرنے لگے ہیں. بہت افسوس کام ہے. تو جس کو اگر جنت اور دوزخ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے فیصلہ کرنے کا, مگر افسوس ہے ہم خود اس کو بتا دے رہے ہیں یہ جنتی ہے, یہ دوزخی ہے. اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ایک چھوٹی سی کہانی, ایک چھوٹی سی بتاتا ہوں. میں وقت کا یہ بھی ہے. ایک شخص شراب خانے میں مر جاتا ہے اور ایک شخص مسجد میں مر جاتا ہے. بتائیے کون جنتی ہے, کون دوزخی ہے؟ تو سب کا ذہن جو ہے ایسے پہ جائے گا, ارے شراب خانے میں جو مر گیا وہ دوزخی ہے, جو مسجد میں مر گیا وہ جنتی ہے. یہی خیال آئے گا ہمارا. مگر جو شخص شراب خانے میں جو مر گیا ہے وہ وہاں کے شرابیوں کو ہدایت دینے گیا تھا کہ یہ حرام ہے, یہ پینا حرام ہے, اس سے پرہیز کیجیے. وہاں پہ اس کی موت ہو جاتی ہے. یہ شخص جو مسجد میں مرتا ہے وہ چپل چرانے یا چوری کرنے کی نیت سے آتا ہے, یہاں پہ اس کی موت. اب بتائیے کون جنتی ہے, کون دوزخی ہے؟ اب اتنا سوچتے ہی پھر اپنا دماغ بدلا جائے, ارے جو شراب خانے میں مر گیا وہ جنتی ہے, جو مسجد میں مر گیا وہ دوزخی ہے. مگر جو شراب خانے میں, پھر اس کا تھوڑا سا کہانی کا ٹویسٹ کرتا ہوں, شراب خانے میں جو مرتا ہے وہ شراب پی کر وہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے, ارے میں گناہ کر دیا تم مت کرو. تو وہ کیسا ہو گیا؟ اس کی شراب کے نشے میں وہ عادت یہ کرنا. اور جو انسان مسجد میں مر گیا اس کی ماں سخت بیمار ہے تو دوائی کے چکر میں آ کے مر گیا چوری کر لیا. اب بتائیے کون جنتی ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, کون جنتی ہے. ہمارا فرض ہے ہم امتی بن کر ایک ہو کر اس جو سیاستی طاقتیں ہم کو جدا کر کر الگ کر کر
हम पर हुकूमत कर रही है, हम एक होकर इसका मुकाबला करें। और हमारी ऐसी हैसियत नहीं है, एमपी और एमएलए बहुत दूर की बात है, एक कारपोरेटर जिताने की हैसियत नहीं है। तो इस वजह से मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ, तमाम साहिबों से भी गुजारिश करता हूँ, ये उम्मती होकर एक होकर इस माशरे में जीने की ये करें। जज़ाकल्लाह खैर। अरे ताहिर पीर साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिफज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु तआला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नबीयल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम स्टेज पर मौजूद सादात इकराम, उलमा इकराम, अफ़ाज़ इकराम और तमाम मशाइख़ीन और दिगर सियासी मुदब्बिरान, मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी बारगाह की इफ्तिताह में आने की तौफ़ीक़ अता फरमाई है। और जो हज़रात इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं, कोशिश करे हैं, अल्लाह पाक उन्हें दुनिया और आखिरत में इसका अजर व सवाब अता फरमाए। हाज़िरीन इकराम, अल्लाह सुब्हान व तआला का बड़ा फ़ज़ल है कि बड़ी फ़ख्र की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे ईमान से सरफराज फरमाया है और हमें ऐसे दीन का पैरोकार बनाया है जो कायम दायम है। और हमको चाहिए, हमारी उम्मत की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है, नमाज़ों की पाबंदी हमारे पास नहीं है। तो मस्जिद बनाना बहुत बड़ा सवाब का काम है, मस्जिद को आबाद करना उससे भी बड़ा सवाब का काम है। और पंजगाना नमाज बजमात पढ़ते हैं, ये बड़ी खूबी की बात है। और ये इसलिए पढ़ते हैं ताकि बताया जाए जो हजरात मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद कसते हैं और मुसलमानों को कमज़ोर समझते हैं, इस बात का ऐलान होता है कि मुसलमान बजमात अल्लाह के नाम पर इकट्ठे हो जाते हैं। जब अजान होती है मस्जिद की, अल्लाह अकबर, तो सिर्फ एक अजान पर कोई पंचर डाल रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई काम मजदूरी कर रहा है, कोई मेहनत कर रहा है। जब अजान अल्लाह के घर से गूंजती है, सारे मुसलमान दौड़कर मस्जिद में आ जाते हैं और खड़ जाते हैं और दुनिया को ये बताते हैं, चाहे हम हमारा रंग कौन सा भी हो, चाहे हम लोग गरीब हों या अमीर हों, बादशाह हो या फकीर हो, जो भी हो, चाहे हम कोई भी मुलाजिमत करने वाले हों, लेकिन जब अल्लाह की बात आ जाती है, इबादत की बात आ जाती है, दीन की फलाह और महमूदी की बात आ जाती है, तो हम सारे एक सफ में खड़े होते हैं। खड़े हो गए एक ही सफ में महमूद अयाज, ना रहा बंदा नवाज। ये ऐलान मुसलमान कर कर बताते हैं कि हम वो कौम हैं न तलवारों के जोर से लड़ते हैं, हम तो वो कौम है मोहम्मद अरबी की मोहब्बत से आगे बढ़ते हैं। हम वो कौम हैं कि हमको जिलाने वाले बड़ी ताकतें हमको तोड़ने की कोशिशें 1400 साल से करती हुई आ रही है, आज भी कर रही है, कयामत की सुबह तक भी करेंगी। लेकिन सारे लोग यही बात ख्याल कर रहे हैं कि मुसलमानों की ताकत का राज क्या है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं कि मुसलमानों की ताकत का राज न दौलत है, न हुकूमत है, न ताकत है। मुसलमानों की जो ताकत का राज है वो सिर्फ मोहम्मद अरबी की मोहब्बत है। जिसके दिल में मुस्तफा की मोहब्बत होती है वो जहां चाहे भी अपने जीत के झंडे काट कर आ जाता है। मुअज़्ज़ज़ साहब इकराम, फिर एक मरतबा मैं ये मौका देने वाले हमारे शकील हजरत को मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुशखबरी देता हूँ कि अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत में कामयाबी फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। ఈరోజు ఇంత పెద్ద కార్యక్రమానికి నన్ను ఇన్వైట్ చేసినందుకు ప్రత్యేకంగా షకీల్ షఫీ అన్న గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, అలాగే ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి ప్రోగ్రామ్కి విచ్చేసిన షఫీ అన్న గారికి, అలాగే మత పెద్దలకి, ఇంతమంది మత పెద్దల్లో నాకు అవకాశం కల్పించిన ఈ జామియా మసీద్ కబ్రస్థాన్కి అందరికీ, ముఖ్యంగా మీ అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, నిజంగా నేను చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే
7 నెలల కిందట భూమి పూజ చేసింది, కానీ నేనే ఇక్కడ అవకాశాన్ని షకీలను కల్పించారు. మళ్ళీ అదే మసీదు కట్టిన తర్వాత ఈరోజు స్పెషల్ గెస్ట్గా నన్ను ఇన్వైట్ చేసి ఓపెన్ చేయించిన దానికి ప్రత్యేకంగా షకీల్ షఫీకి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా అనంతపూర్లో దాదాపు 100-125 మసీదులు ఉన్నాయి. నేను గతంలో కానీ చెప్పాను, ఏ చిన్న అవసరం వచ్చినా కానీ మున్సిపాలిటీ ఫండ్స్లో కానీ నేను హెల్ప్ చేస్తాను. అలాగే మసీదులు రిపేర్లకైతే ఏమి, అలాగే అక్కడ ఉండే ఏమన్నా మౌలిక సదుపాయాలు కావాలన్నా కానీ నేను ముందుంటానని చెప్పేసి గతంలో కానీ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈరోజు కానీ చెప్తున్నాను. దానిలో భాగంగానే ఈ కబ్రస్థాన్కి దాదాపు 1 కోటి రూపాయలతో 65 లక్షల రూపాయలు కాంపౌండ్ వాళ్ళు, అలాగే లైట్లు, మిగతా మౌలిక సదుపాయాలు దగ్గర 1 కోటి రూపాయలు ఈ కబ్రస్థాన్కి గత వారంలోనే ఇక్కడ భూమి పూజ చేయడం జరిగింది. కాంపౌండ్ వాళ్ళు ఇవి కానీ తొందరగా కంప్లీట్ చేసి మళ్ళా ఇక్కడ ఓపెనింగ్ పెట్టిస్తామని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటాను. ఇవే కాదు, అనంతపూర్లో అంటే ముస్లిం సోదరులకి ఏ సమస్య వచ్చినా నేను ముందుంటాను. ఆ విషయం షకీల్ అన్నకి రెగ్యులర్గా నేను మాట్లాడుతూ ఉంటాను. అన్న ఇక్కడ సమస్యలు ఉన్నాయా ఉంటే చెప్పండి, నేను ముందుంటాను, చేపించుకుందాం అని చెప్పేసి ప్రతిసారి మేము డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉంటున్నాం. ఏమైనా చిన్న ఉన్నప్పుడు చెప్పినప్పుడు నేను ముందుండి చేపిస్తాను. దానిలో భాగంగానే ఈరోజు ఈ కాంపౌండ్ వాళ్ళని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ ఇంకొకసారి ఏం చెప్తున్నాను, ఏ అవసరం వచ్చినా నేను మీకు ముందుంటానని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. और हमारे रमेश नायडू लेक्चरर साहब जो हैं, ऐसे बेहतरीन किताब लिखे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, लिखे उन्होंने इनाग्रेट करना बोल के 1 महीने से वेट कर रहे हैं। तो गैर कौम हम लोगों को नफरत करते, गैर कौम वाले किताब लिख के उसको आज प्रेजेंट करना बोल के एक लेक्चरर साहब आज लिख के आज का मौका जो है उनको भी 1-2 मिनट देना चाह रहे थे। बहुत बेहतरीन अंदाज में वो किताब लिखे हैं। आइए सर इट साइड నేను ఒక రిటైర్డ్ ప్రిన్సిపల్, 78 ఏళ్ళ వయసు. నేను ప్రతి రంజాన్ మాసంలోనూ ఖురాను ఖచ్చితంగా చదువుతాను. నా దగ్గర దాదాపు 10,000 రూపాయల ఇస్లామిక్ లిటరేచర్, నాకు అరబిక్ ఉర్దూ ఇవన్నీ రాకపోవడం వల్ల ఇంగ్లీష్లో పుస్తకాలు కొనుక్కొని నేను చదువుతాను. ముఖ్యంగా ముందు సార్ ఉన్నారు, నాకు పాతకాలం పరిచయం. నేను మహమ్మద్ రసూల్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ప్రవక్త యొక్క జీవితం ఒక గొప్ప త్యాగం. ప్రవక్త ఒక గొప్ప శాంతి సేనాని. ప్రవక్త ఒక అద్భుతమైనటువంటి మతాన్ని లోకానికి ఇచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప మహనీయుడు. ఆ దైవప్రవక్త జీవితం ప్రతి ఒక్కరూ చదవాలి. ముఖ్యంగా ముస్లిమ్స్ ఏంటి, భారతదేశంలో అందరూ చదవాలి. ఎందుకంటే ఆయన జీవితం అంతా కష్టాలమయంగానే ఉంది. జీవితం అంతా యుద్ధాలు చేశాడు, కానీ జీవితం అంతా శాంతినే ఆయన ప్రబోధించాడు. నేను ఒక సందర్భంగా మన షకీల్ షఫీని అడిగితే, నువ్వు ఆ పుస్తకం ప్రింట్ చేసుకో, నేను నీకు సహాయం కూడా చేస్తాను అన్నాడు. ఈసారి రంజాన్ నెలలో దాదాపు ప్రతి సాయంత్రం గులాబీ పూలు దువా చేసి నేను ఈ పుస్తకం రాసిన. దాదాపు 2 నెలలుగా వెయిట్ చేస్తాను. నేను బుక్ రిలీజ్ చేసుకున్నాను. నాది మసీదు రిలీజ్ అవుతుంది. ఆ ఇనాగ్రేషన్ అప్పుడు నీకు తప్పకుండా ఇస్తాను. ముఖ్యంగా మన మధ్యలో మన ఎమ్మెల్యే గారు దగ్గుబాటి గారు ఉండడం నాకు చాలా సంతోషం. ఆయన ఎప్పుడో కాంట్రాక్టర్గా ఉన్నప్పుడు నాకు పరిచయం, కానీ ఆయన చూడాలని నేను ఆయన ఎమ్మెల్యే అయినప్పటి నుంచి చూస్తాను. నాకు అవకాశం ఇవ్వకున్నారు. ఇంట్లో ఇంత మంచి అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు నా యొక్క హృదయపూర్వక చివరగా إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما అని సూరా అల్ హజ్ 56 చెప్తుంది. వాస్తవానికి అల్లా ప్రవక్తపై తన ఆశీర్వాదాలను కురిపించారు మరియు అతని దైవదూతలు అతని కోసం ప్రార్థిస్తారు. ఓ విశ్వాసులారా, అతనిపై
అల్లా యొక్క ఆశీర్వాదాలను అభ్యర్థించండి. మరి శాంతి యొక్క విలువలను శుభాకాంక్షలతో అతనికి వందనం చేయండి. जरा भाइयों आज నేను పడేది కాదు. सर ओके सर. शालपोशी करना तो आप तय कर लें हमारे बादशाह साहब, अब्दुल्ला साहब, माजिद साहब, जाहिद हुसैन साहब और तनवीर साहब और अनवर साहब सब बैठ के मशवरा करके जो भी उस तरीके से काम आगे लगा. है अजान ज़हीरुल्लाह शाह कादरी दामद बरकातुहू हज़रत अजान देंगे. सर تولوا فقل حسبي الله حسبي. बहुत मुकद्दस सब मौका है. यहाँ पे हमारा दुआ ख़त्म हुई और अजान दे रहे हैं. तो इससे पावरफुल बात क्या होती है? दिमाग से लड़ाओ, दिमाग से लड़ा के अपने अपने जगह अपने अपने काम करो और नफरतें दूर करो, एक दोनों मिलकर रहें इंशाल्लाह. आमीन बोलो सब लोग. आमीन. أشهد أن محمد رسول थोड़ा साइड में ప్రియతమ నాయకులు దగ్గుపాటి ప్రసాద్ గారు కానివ్వండి, మా చిరకాల మిత్రుడు శ్రీ కాల్వ శ్రీనివాసులు గారు కానివ్వండి ఇక్కడికి వచ్చారు. ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం కానివ్వండి, ఇక్కడ ఉన్న ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు కానివ్వండి, తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ప్రజాప్రతినిధులు ఎవరైతే మాకు ఊరికే వక్ఫ్ సవరణ చట్టం అని, తర్వాత వక్ఫ్ బై యూజర్ ల్యాండ్స్ కబ్రస్థాన్లు ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందని లేని అపోహలు చెప్పారు. ఇదే అనంతపురం పట్టణంలో ఇదే అనంతపురం పట్టణ శాసనసభ్యులు భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిగా బరియల్ గ్రౌండ్కు వక్ఫ్ బై యూజర్ ల్యాండ్స్కు 67 లక్షల రూపాయల కాంపౌండ్ వాలు మరియు 17 లక్షల రూపాయల ఎలక్ట్రిసిటీ పోల్స్ ఇచ్చారని చెప్తే ఈ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వము ఎంత చిత్తశుద్ధితో ముస్లిం మైనారిటీల పట్ల మనము అభివృద్ధికి వాళ్ళు దోహదపడుతున్నారో ఇదే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ ఇండియా వైడ్. కాబట్టి ఎప్పుడు మనము ప్రభుత్వాలు ఏదైనా మా నాయకుల మీద మాకు ఎన్నిక కాబడిన నాయకులు మేము ప్రజలు ఓట్లేసి వెన్నుకున్న నాయకులపైన మాకు ఎక్కువ నమ్మకం ఉంది. వీరు మా వెంట ఉండి ప్రతి సమస్యను మైనార్టీల ప్రతి సమస్యను కావాల్సిన ప్రతి అభివృద్ధిని అనంతపురం పట్టణంలో
మన ఎమ్మెల్యే దగ్గుపాటి ప్రసాద్ గారి ద్వారాగానైతేనేమి, అనుభవజ్ఞులు కాలువ శ్రీనివాసులు గారి ద్వారాగానైతేనేమి, ముఖ్యమంత్రి గారి ద్వారాగానైతేమి మేము సాధించుకుంటాం. అభివృద్ధి వైపు తీసుకెళ్తాం. ఆరోపణలకు అడ్డుకట్ట వేస్తాం. తప్పకుండా అభివృద్ధి పదంలో ముందు ఉండడానికి మాకు సహకరిస్తారని మేము ఆశిస్తూ ఇక్కడ విచ్చేసిన ప్రతి ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా వచ్చిన అనేక మంది స్వాములు, దర్గా ప్రతినిధులు, ముతువల్లీలు, ఇమాములు అందరూ కూడా మేమెంతో ప్రభుత్వానికి దోహదపడి ఎన్నికలలో వీళ్ళందరూ కూడా సహకరించి చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి కావాలనే వాళ్ళ ఉద్దేశం పూర్తయింది. అందుకే మేము ఇటువంటి కార్యక్రమాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో పార్టీలకు అతీతంగా మేము కలుస్తున్నాం. పార్టీలకు అతీతంగా అభివృద్ధిని చేసుకెళ్తున్నాం. ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు ప్రతి పార్టీ వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి అభివృద్ధిలో అన్ని పార్టీలు కలిసి రండి. మీరు ఆరోపణలు చేసినంత ఇంకా మేము గట్టిగా అవుతాం, ఇంకా మేము స్ట్రాంగ్ అవుతాం, ఇంకా మేము అభివృద్ధి చేస్తాం. అంతేగాని మేము కల్లివల్లి మాటలు ఎవరు కూడా ఆరోపణలు పెట్టే ఎవరు వినరు. కాబట్టి దయచేసి అభివృద్ధికి సహకరిద్దాం. చంద్రబాబు నాయుడు ఆశయాలు కానివ్వండి, దగ్గుపాటి గారి ప్రసాద్ గారి ఆశయాలు, ఆయన కృషికి కానివ్వండి, కాలువ శ్రీనివాసులు గారి కృషి కానీ ఎల్లంటే మేము మైనారిటీలు వెళ్ళంటూ ఉంటామని మరి తెలియజేసుకుంటాం. ధన్యవాదాలు. इसको आगे ले जाएंगे और जो भी हजरात इस काम में दिए हैं और स्पेशली जो म्यूनसिपालिटी मेयर साहब, क्योंकि थोड़ा सियासत के हिसाब से एमएलए आने के बाद मेयर आते, मेयर आने के बाद कारपोरेटर आते, ये सारे मसले वो तो चलते रहते हैं। बहुत साथ दिए कारपोरेटर्स भी जो भी है हमारे आनंदपुर के अभी देखो हवा में 9 लोग मुसलमान कारपोरेटर बने हैं और आप इस बार 15-20 हिस्सा लेना है। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, उम्मीदवारों की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग जब आगे इस तरीके से काम जो हम लिए हैं, मेरे सारे कारपोरेटर्स भी इसमें शामिल हैं। हर बार का टैंकर होना, भेजे स्ट्रीट काम करके पूरा करके गए थे। उन्होंने भी जो है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिलाने में जो हर आपकी भी जो इसमें और जो भी हजरात इस मस्जिद के लिए एसीज दिए हैं या हमारे इन्वर्टर दिए हैं, फैंस दिए हैं, वो हजरात से मैं बात नाम से नहीं बुला सकता, सब एक बार सामने आके यहाँ पे खड़े हमारे इसाक जो भी हजरात बाहर भी हैं, अगर वो लोग आए तो ताकि हम लोग शुक्रिया अदा कर सकते हैं। और हम लोग जो है इस मस्जिद की नमाज जो जुमा की नमाज हर जगह भी जो है 2-2-15 तक बयान देते, लंबी जो है बयान करते करते थोड़े लोगों को या तो लेट का मौका दे दीजिए या पहले नमाज पढ़ने का मौका दे दीजिए बोल के कई लोग उनके कामों में मसरूफ हो गए। तो जुमा की नमाज 1:15 को यहाँ पे खत्म करना चाह रहे हैं और ईद की नमाज जो है फजर की नमाज के आधे घंटे के बाद ईद की नमाज होगी, यानी कि 6:40 पर 5 को बकरीद की नमाज होगी, क्योंकि ये हमारी पहली जुमा होने वाली है और हमारी पहली ईद होने वाला है। ये बोलना जरूरी है, इसलिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे जो भी हजरात आए हैं सबको दुआ की दरखास्त करते हुए जो भी गुनाह हमारे से हुए हैं, मेरे से या हमारे बाबा मुतवल्ली साहब से, पहले दिन से आपको मैं माफी चाहता हूँ और अपना काम करने के लिए आगे हमारे मुसलमान कारपोरेट रहते हैं मेयर मुंबई हमारे अड्डा का नाम जनाब हो तो सपोर्ट देने से भी काम नहीं है शुक्रिया करके और आगे बहुत आगे अच्छे प्रोग्राम करना हो आगे आना वसीम भाई के दादा साहब कासिम साहब जो है सप्तगिरी सर्कल में जो शॉप्स बंधे गए हैं, ये हमारे जो एक्स एमएलए वेंकटराम रेड्डी के बाबा से लड़के, हमारे बाबा और इनके दादा लड़के वहाँ पे सप्तगिरी सर्कल पहली ईदगाह थी, वो ईदगाह को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन के उसके बाद हम लोग हमारे वक्फ बोर्ड के लैंड में ईदगाह को यहाँ पे शिफ्ट करके वहाँ पे आमदनी का जरिया बनाए, जिसमें इनके दादा साहब जो है बहुत उनका साथ है। वो कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आज बनी हुई है बोले तो इनके दादा साहब ने जो है साथ दिए और नूर अहमद साहब हैं। तो ये
उनका भी जो है मदद के सिलसिले से उनके दादा परदादा से उनको करने से ही अल्लाह आज आत्मा के मेहर बनाया है कि अल्लाह जब चाहता देता है, जब नहीं चाहता है देता है। ये हमारी जीत नहीं होती है, हमारी हार नहीं होती, बस एक दूसरे के साथ है। और हमारे सैफुल्लाह साहब का जो है आधा वार्ड इधर हमारे पास आता, आधा वार्ड इधर जाता, तो हमेशा हमारे सैफुल्लाह कारपोरेटर साहब भी जो भी बोलते हैं वो भी एक मिनट से कुछ मांगे बोलते हमारे दादू से भी से रिप्रेजेंट करके काम कर रहे हैं। और जो भी 5th रोड में कारपोरेटर्स को हमें हमेशा पूरे कारपोरेटर्स आए थे यहाँ पे, हर पार्टी के लोग भी आए थे। तो सियासत को बाजू रखे तो कौम की आगे जाने की, हमारे बच्चों की, हमारा जो सिलसिला आगे जाता। ये सियासत ज्यादा एंटर होने के बाद जमात का जो लफ्ज है, मुरीदों का जो लफ्ज है, आज सियासत के हाथों में जाके झंडे बदलते ही, गवर्नमेंट बदलते ही जो भी काम पार्टी को करते हैं, जो भी काम उस पार्टी के झंडे उठाते हैं, वो मुरीदा हो गए हैं, वो जमात हो गई है। ये बड़ी अफसोस की बात है कि जमात की मीनिंग बदल गई, मुरीदों की मीनिंग जो है लफ्ज बदल गया। इसीलिए कभी भी दिल में रखो, सियासत जो भी पार्टी को कर सकते हैं करते हैं। जब हमारा मसला होता है, वो जो भी मसला होता है साथ दे, वो साथ दे के आगे लेके तो हम लोग और तरक्की कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो मेयर साहब आए थे, लेट से आए थे, अब इसी वजह में मैं बोला लेट आने का भी वजह नहीं, इसलिए फिर भी उन्होंने तहे दिल से दुआ दें कि फिर भी वो मेयर बनने की सब लोग मेयर करें। क्या अच्छे मेयर हैं, किसी को अच्छा ना करे तो बुरा नहीं करते। इसलिए आजकल बुरे करने वालों से डर ज्यादा हो रहा है। अच्छा करने वाला तो अल्लाह के ऊपर से हम दुआ करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो जरूर हम लोगों को अच्छा होता है, ताकि बुरा ना करे ऐसे आदमी को हम लोग चुना है। तो इसलिए मैं वसीम भाई को दिल से यहाँ पे आने की शुक्रिया करता हूँ। सैफुल्लाह भाई को 2 मिनट बात करने के लिए सारी जो भी हमारे मेयर साहब बोले हैं, वासिम भाई जो भी बोले सही है। ये कब्रिस्तान के सराउंडिंग कंपाउंड के वास्ते है कि लोग हमेशा पूछते थे, हमें नंबर ऑफ टाइम्स हमें भी तरह के एस्टिमेशन आता नहीं, गवर्नमेंट बदल गई, लेकिन जो हमें कमिटमेंट है वो काम हम फुलफिल करें। थैंक यू। और ये जरूरी समझ के बोल रहा हूँ कि 9:30 बजे ईदगाह में, क्यों बोले तो हम जामिया मस्जिद में, जामिया मस्जिद, नूरानी मस्जिद और नमाज कट्टा मस्जिद यानी कि ईदगाह मस्जिद और चौथी मस्जिद जो है ये रहीम कादरी साहब के 4 मस्जिदों के अल्लाह ताला हम लोगों को मुतवल्ली का काम देंगे। मैनेजर, मुतवल्ली बोले तो केयर टेकर, मैनेजर, रखवाला, उससे बड़ा कोई लफ्ज हम लोग यूज भी नहीं करना है। तो 4 मस्जिदों के इस मस्जिद से मिला के अल्लाह ताला हम लोगों को 4 मस्जिदों को मुतवल्ली बना के हम लोगों को खिदमत करने के लिए दिए हैं। इंशाल्लाह जरूर आखिर सांस तक भी जो है हम लोग खिदमत की कौम की खिदमत करने के लिए आगे जाते हैं। और ईद की नमाज जो है 9:30 बजे ईदगाह में होगी। यहाँ पे इस मस्जिद में ईद की नमाज 6:40 पर 5 को होगी। और हमारे ईदगाह मस्जिद सप्तगिरी सर्किल में भी सुबह की नमाज के आधे घंटे के बाद होगी। और 8:30 बजे होगी नूरानी मस्जिद में, और जामिया मस्जिद में होगी 8:30 को बजे इमाम साहब 9 बजे। तो ये 4 मस्जिदों का जो है ईद की नमाज का भी अभी मौका देने से वो भी ऐलान करता हूँ। अभी जो भी हजरत यहाँ पे आए हैं खाने का इंतजाम यहीं पे करेंगे, और बाहर से हमारे मेहमान आए वो भी जो है हमें घर ले जाके जो भी हमारा करना है, जो भी हजरत यहाँ पे सोच समझे यहाँ पे दावत दिए नहीं तो उनके पास भी है, जैसे आपकी सहूलत है। या रसूल सलाम
अच्छे ईद में गांधी का स्पीच ले माशाल्लाह जबरदस्त बैठा ना ವಿಡಿಯೋ ದೀಪ ಸರ್ ಹಲೋ ಆಯ್ತಾ बाबू इधर इधर आना मा हेलो